Good morning, students. Today I am going to take your class of SST, that is history subject. I am going to teach you first chapter named Tracing Changes Through 1,000 Years. In this chapter we will learn that how things change year by year. Okay? So let's start the chapter. Here something is written. Let's read. Map 1. So this map is the map 1. Okay. Here a section of the world map drawn by the geographer Al-Idris in the 12th century, showing the Indian subcontinent from land to sea. So in this map, the map of India is drawn, but it is very difficult to understand by looking at the map. So we will read what it is written here. First of all, one word is given, cartographer. That means a person who makes map. Okay. So take a look at map 1 and 2. So first of all, we are going to take a look of map number 1. Map 1 was made in 1154 CE. This map was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idris. So who made this map? Al-Idris made this map. He was an Arabian. He belonged to Arab and he was a geographer. He made this map. अल-इद्रिस जो कि अरब के रहने वाले थे, वो एक जोग्राफ़र थे, उन्होंने ये मैप बनाया था. द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज़ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इस मैप में जो दिखाया गया है वो डिटेल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का. फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड. एक बड़ा सा मैप का वर्ल्ड का मैप था जिसमें से ये पीस लिया गया जो कि किसको शो कर रहा है? इंडिया को. ओके. मैप 2 वॉज मेड इन द 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर. हियर वी रेड कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स मैप. सो इन 1720s a French cartographer made a world map. The two maps are quite different even though they are the same area. ये दोनों मैप डिफरेंट हैं लेकिन बावजूद इसके कि ये एक ही चीज़ के बने. दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर एरिया को लोकेट कर रहे हैं, एक ही एरिया को लोकेट कर रहे हैं बट डिफरेंट वे में. ओके. इन अल-इद्रिस मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया. अब अल-इद्रिस के मैप में साउथ इंडिया वहाँ है जहाँ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नॉर्थ इंडिया होगा. दैट मीन्स समवेयर हियर. ओके. एंड साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप. और श्रीलंका जो है वो टॉप पे है. मे बी समवेयर हियर और हियर. ओके. प्लेस नेम आर मार्क्ड इन अरेबिक. यहाँ पे जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नॉर्थ इंडिया होगा वहाँ पे साउथ इंडिया है और मैप में श्रीलंका जो कि बॉटम पे होना चाहिए वो टॉप पे है. और इसमें जो जगहों के नाम दिए हुए हैं वो अरेबिक में लिखे हुए हैं. ओके. क्योंकि अल-इद्रिस जो थे वो अरब से बिलोंग करते थे, अरेबिक लैंग्वेज जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने मैप में सारी चीज़ें अरेबिक में लिखी हुई हैं. Now next, this one is the second map. Okay, this map was prepared by French. And there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh spelled in the map Kannauj. Map 2 was made nearly 600 years after Map 1.
और मैप 2 जो है वो करीब 600 साल बाद मैप 1 के बनने के 600 साल बाद बनाया गया था, ड्यूरिंग विच time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, and coastal area in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyage. So we can resemble this map. This map is matching to the current map and it is very much common and familiar to us. ये बहुत ही कॉमन है, फेमिलियर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको एग्जैक्टली उस तरीके से शो किया गया है जैसे कि ये होता है. और ये मैप जो है यूरोपियन सेलर्स इस मैप को यूज़ करते थे अपने वॉयज पे. ओके, हियर the subcontinent from the early 18th century Atlas Novio of Guillaume de Isle. So this map is from here. Locate the area in the interior of subcontinent on map 2. Are they as detailed as those on the coast? Follow course of the river Ganga and see how it is shown. Why do you think there is difference in the level of detail and accuracy between the coastal and inland areas in this map? So here we can find that this map is quite detailed map. So that means the study about map had been changed through time to time. हर बढ़ते हुए समय के साथ नॉलेज बढ़ रही थी. नॉलेज जो गलत थी वो उसका इम्प्रूवमेंट किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत ही डिटेल्ड मैप बनाया जा सका. ओके, नाउ इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दोनों टाइम में जो कार्टोग्राफी की साइंस थी वो अलग अलग थी, जिस वजह से 2 मैप जो हैं वो सेम जगह के हैं बट डिफरेंट दिख रहे हैं. व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. जब हिस्टोरियंस जो हैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, पुराने टाइम के मैप्स पढ़ते हैं, तो उन्हें माइंड में ये हमेशा रखना होता है कि हर टाइम पीरियड के साथ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे वो चेंज हो रहे थे. The context in which information about the past was produced. और यही वो context होता था जिसके थ्रू past की informations निकाली जाती है. New and old terminologies. Terminology means words जिनके पहले कुछ और meaning होते थे, टाइम के चेंज होने के साथ उनकी मीनिंग चेंज हो गई. If the context in which information is produced change with time, what about language and meanings? अगर हम ये देखें कि टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस की जाती है वो चेंज होती है, तो लैंग्वेज और मीनिंग भी चेंज होती हैं. क्या ऐसा है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. अब क्या होता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो हमेशा चेंज होते रहे हैं, है ना. तो मिडिवल पर्सियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन. मिडिवल टाइम की जो पर्सियन थी वो डिफरेंट थी मॉडर्न टाइम के पर्सियन के कंपैरिजन में. द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी. और डिफरेंस जो है वो सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी से रिलेटेड नहीं है. द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम. वर्ड्स की मीनिंग भी समय के साथ बदल जाती थी. ठीक है, तो हम उसको समझेंगे कैसे बदलती थी. टेक द टर्म हिंदुस्तान. एक टर्म ले लेते हैं जो कि हिंदुस्तान, वेरी फेमिलियर वर्ड टू अस. ये बहुत ही सुना हुआ, रेगुलरली ऑलमोस्ट हम लोग सुनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया. आज हम हिंदुस्तान का मतलब क्या समझते हैं? इंडिया. द मॉडर्न नेशन स्टेट, हम इसे मॉडर्न स्टेट जो आज का टर्म है, हमारी कंट्री है, हिंदुस्तान वर्ड जो है वो रेफ़र करता है कंट्री को. When the term was used in 10th century by Minhaj I Siraj,
ये टर्म जब 13th सेंचुरी में मिन्हाज आई सिराज के द्वारा यूज़ किया गया था। अ काउंसलर हु रोट इन पर्सियन, ये पर्सियन में लिखते थे। ही मेंट द एरिया ऑफ पंजाब, तो उनका हिंदुस्तान से क्या मतलब था? एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया को लोकेट कर रहे थे हिंदुस्तान वर्ड के थ्रू। किस एरिया को लोकेट कर रहे थे? पंजाब हरियाणा के बीच को और गंगा और यमुना के बीच की जगह को। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनेशंस ऑफ दिल्ली सुल्तान। वो उस पार्ट को रेफर करते हैं जो कि दिल्ली सुल्तान के एरिया में आता था। द एरिया included in this term shifted with the extent of sultanate, but the term never included South India. और इंडिया जो है जैसे जैसे उनका सल्तनत बढ़ता गया तो उसका वर्ड का एक्सटेंट बढ़ता गया, बट इस वर्ड के हिंदुस्तान वर्ड के अंडर साउथ इंडिया कभी भी नहीं आता था। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th century, बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, the fauna and the culture of the inhabitants of subcontinent. फिर बाबर के टाइम में क्या हुआ? 16th सेंचुरी में बाबर के टाइम में हुआ कि हिंदुस्तान वर्ड जो है उनके लिए क्या हो गया? ज्योग्राफी का वर्ड हो गया, जो कि फ्यूना को डिस्क्राइब करता था, दैट मीन्स एनिमल किंगडम को डिस्क्राइब करता था, और कल्चर को डिस्क्राइब करता था जो कि सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले थे। As we will see later in this chapter, this was somewhat similar to way the 14th century poet आमिर खुसरू used the word हिंद। और ये वर्ड कुछ सिमिलर था जिस तरह से 14th सेंचुरी में आमिर खुसरू ने ये वर्ड को यूज़ किया था हिंद के तौर पे। तो हिंदुस्तान वर्ड की मीनिंग हिंद से बहुत रिजेंबल करती थी। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning in which we associate it today. तो अर्लियर टाइम्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये वर्ड जो है कभी भी पॉलिटिकल या फिर नेशनल मीनिंग नहीं निकालता था। ये क्या था? एक पर्टिकुलर एरिया को डिस्क्राइब करता था। लेकिन अभी हिंदुस्तान वर्ड क्या है? पूरे इंडिया को डिस्क्राइब करता है। Can you think of any other words whose meaning change in different context? तो क्या आप कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में सोच सकते हैं जिनकी मीनिंग समय के साथ बदलती गई हो? Of course बहुत सारे वर्ड हैं, but this is homework for you students. You have to find out with the help of internet that the word whose meaning has changed with the passing of time, and you will have to write down the changed meaning and the previous meaning. Okay, so this is your homework. Now let's continue with the remaining portion. Historians today have to be careful about the term they use because they meant different thing in the past. अब historians को क्या है? एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि अर्लियर टाइम में वो वर्ड को किसी और तरह से यूज़ किया जाता था, उसकी मीनिंग कुछ और होती थी, प्रेजेंट टाइम में कुछ और होती है। तो उन्हें बहुत केयरफुल होना होता है और सच एग्जैक्टली उन्हें ट्रांसफ़र करना होता है उस वर्ड का करेक्ट मीनिंग जो कि उस टाइम में एग्जिस्ट करता था। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर. इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. हम एक सिंपल सा वर्ड समझ सकते हैं फॉरेनर. तो फॉरेनर वर्ड क्या रिफ्लेक्ट करता है आज के टाइम में? वो व्यक्ति जो इंडिया का नहीं है. The medieval period of foreigner was medieval period of foreigner was any stranger who appeared, say, in given village, someone who was not a part of that society or culture. तो अर्लियर टाइम में क्या होता था कि फॉरेनर कौन होता था कि गांव के बाहर का कोई भी व्यक्ति जो उस कल्चर और सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता था, उससे फैमिलियर नहीं होता था, वो फॉरेनर होता था. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi. तो हिंदी में एक वर्ड है लाइक फॉरेनर का हिंदी ट्रांसलेशन है परदेसी,
और आज के टाइम में परदेसी मीन्स हु इज़ नॉट लिविंग इन आवर कंट्री, बट अर्लियर टाइम में परदेसी का मतलब क्या होता था, जो उस जगह से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे भी रहता होता था तो उसे परदेसी कहा जाता था। और पर्सियन में ये वर्ड था अजनबी। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। सिटी ड्वेलर जो है वो फॉरेस्ट ड्वेलर को क्या रिगार्ड कर सकता था, फॉरेनर। बट टू पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स। और दो पीजेंट जो सेम विलेज में रह रहे हैं वो फॉरेनर्स नहीं होते थे टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए, इवन दो दे मे हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। और जिससे जबकि उनका रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, बट क्योंकि वो सेम विलेज में थे तो वो फॉरेनर्स नहीं थे। Historians and their sources. Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Historians जो हैं different sources को use करते हैं learn करने के लिए, past के बारे में जानने के लिए, और उनकी जो sources होते हैं वो depend करते हैं कि वो किस period के बारे में study कर रहे हैं और nature क्या है उनके investigation का। Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 In this book, we will read. Sorry. So, in this book we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. लास्ट ईयर हमने किसके बारे में पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। अब इस बुक में हम पढ़ेंगे 700 से लेकर के 1750 तक की बीच का चेंज। Okay student, thank you. I think this much is enough for today. Remaining portion of this chapter will be completed in next video. I request you all to watch the video carefully. If you have any doubt, you can ask in the official group. Thank you and have a good day.